goes on. So welcome back. This is lecture 9 of PGBP and this was CMA Intermediate June 2022 attempt. ये हमारा PGBP का lecture 9 है, ठीक है? 1 minute. तो हम depreciation में थे. Get started depreciation, correct? And थोड़े problems हमने किए थे. Let's see in all depreciation rates and all. ठीक है, ये 5 problems we had done. Okay, 5 problem हमने किए थे. So now so next topic for us is additional depreciation, ठीक है? But just before that मैं थोड़े से problems और कराऊंगा आपको. Okay, we'll do some more problems of depreciation, ठीक है? Here, so one question I have for you. So this is our PY 2021-22. Okay. So if the previous PY, that is, let me say in Feb 2021, okay, I purchased machinery. Okay, I purchased machinery in Feb 2021. Okay. And I have put to use in my current assessment here, and date is somewhere in December 2021. Okay, or even later, let's say March, somewhere in March 2022 I have put to use. ठीक है, समझ रहे ना मेरा क्वेश्चन क्या है? ये है हमारा करंट प्रीवियस ईयर. ओके, ये प्रीवियस पिछले वाला प्रीवियस ईयर में मैंने मशीनरी खरीदा, ठीक है, कब? Feb 21 को. ओके, बट उसको मैंने पुट टू यूज किया करंट प्रीवियस ईयर में मार्च में. ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज in the previous year, earlier than this previous year, I bought a machinery in February 2021. Okay, but I put it to use on March 2022, any date in March. So what will be the depreciation rate available? Full or half? 50%. Full percent. Full rate, full. sir. फुल कितने लोग फुल बोल रहे हैं, कितने लोग 50% बोल रहे हैं? Yes, sir. Full. Aditi, full. ओके, शिवम फुल. ठीक है. और 50% कोई बोल रहा है? Who thinks 50% should be? Varshini, full depreciation. ठीक है, okay, good. So everyone who has said full depreciation, okay, you are all correct. So basically क्या है ना कि जो if you have acquired and put to use in the same previous year, acquired and put to use in the same previous year. Okay, only here if it is less than 180 days, that is you have bought later than October 3rd. We had seen the date is October 3rd, right? October 3rd के बाद आप लेते हो तो 180 days से कम हो ही जाता है. Okay, till October 3rd if you buy, then you will keep it for more than 180 days. ठीक है, तो October 3rd का डेट याद रखना है हमको, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेट से. You see, just see, October 3rd के अंदर है तो full depreciation. If it is under October 3rd, full depreciation. Later than October 3rd, half depreciation. Okay, this will be there. But see, if the asset is acquired in the previous year, then it is treated as an old asset. Okay, so it is treated as an old asset. So even if I am putting it to use in March, okay, I might have used it only for 10 days. Okay, still you will get full depreciation because it is treated as an old asset which was already there on the first day of the previous year. ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट.
ओके, सो नाउ विल थोड़े से प्रॉब्लम्स देख लेंगे क्विकली. ओके, सो नाउ ये हमने ये प्रॉब्लम कल किया था. दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच वी हैड डन, है ना. ये दिस इज दिस वन, लाइक दैट. This problem, these cases, no, which we had done, where you had opening WDV, we added assets purchased, correct? और then फिर हमने assets sold को minus किया, we deducted assets sold and we got written down value. Okay, and then you had less depreciation you did, and you got opening WDV on the first day of next year. Okay, so इस तरह से हम calculate करते हैं, right? So this is what, इसी में से इसी के थोड़े और problems, highlighting some points. Case J देखिए, it says furniture Q purchased for 50,000. Okay, okay, on 1/7. So यहाँ पे 100% depreciation, यही समझ में आ गया, right? And put to use on 1/11. कितना depreciation लगेगा? Full 100%. 100% मिलेगा? Yes, sir. सर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं है उनको. तो जो परचेज होता है आपका, ठीक है, जो भी आप परचेज होता है उसका इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं होता. ओके, इट इज ऑलवेज परचेज्ड एंड पुट टू यूज. अगर प्रीवियस पीरियड में परचेज्ड है, ओके, तब आपका किसी भी डेट पे पुट टू यूज होगा तो आप 100% दोगे. बट सेम ईयर में इफ यू हैव परचेज्ड इट इज 1/7 में आपने परचेज किए, ओके, एंड यू हैव पुट टू यूज ऑन 1/11, ठीक है, तो हम इसको मानेंगे परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 1/11. ओके, एंड यू विल गेट ओनली 50% डिप्रिसिएशन. ठीक है, ओके. ये पॉइंट एकदम आप क्लियर रखना है माइंड में. क्या कि अगर वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर करंट प्रीवियस ईयर अगर आपने खरीद लिए हो, इफ यू ऑलरेडी परचेज्ड इट इन द प्रीवियस ईयर, ओके, ठीक है, और अगर यू आर पुटिंग इट टू यूज ऑन एनी डेट, ठीक है, तब 100% है. बट इन द सेम ईयर आपका परचेज डेट का कोई रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, जब तक वो पैकेज में है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. जिस दिन आप पुट टू यूज करते हो, ओके, दैट इज द डेट वी कंसिडर. ओके, सो दैट इज इन दिस केस आपको 50% डिप्रिसिएशन लगेगा. ओके, ये याद रखना. ठीक है सर, सेम ईयर में परचेज और पुट टू यूज होगा तब 100% लगेगा. क्या क्या? सेम फाइनेंशियल ईयर में परचेज हुआ और पुट टू यूज हुआ, जैसे लास्ट एग्जांपल में था, तब 100% टैप लगेगा. और अगर ईयर चेंज हो जाएगा तब 50%, मतलब अकॉर्डिंग टू पुट टू यूज डेट. नहीं नहीं नहीं, आप एक मिनट रिपीट कीजिए, मैं दूसरा कुछ देख रहा था. बोलिए क्या हिमांशु? सर, मैं बोल रहा था कि अगर परचेज और पुट टू यूज डेट दोनों सेम फाइनेंशियल ईयर आपकी में, आवाज तो नहीं आ रही है बिल्कुल. मे बी यू कैन जस्ट टाइप इट. ठीक है, अच्छा एक मिनट. हाँ, क्या इसमें एक्चुअली एक ये है ना कि देखिए इसमें ठीक है, ओके, सॉरी, मैंने ये कंसिडर किया इसको 1/11/2021 समझा मैं इसको. ठीक है, ओके, प्रोबब्ली आई वुड हैव. ठीक है, तो ये एक्चुअली दिस इज, ये आपका वो केस है, इसमें आपको 100% डिप्रिसिएशन मिलेगा. ओके, बट इन द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, इन दिस केस, ठीक है, पहला चीज समझना है. ओके, ये अगर 2021 होता, ओके, सो मैं ये बोल रहा था, जो केस मैं आपको समझा रहा था, दैट इज दिस परचेज्ड ऑन 1/7/2021. ओके, अगर इसी डेट में पुट टू यूज हो जाता तो 100% डिप्रिसिएशन. अगर इट वाज पुट टू यूज ऑन 1/11/2021 होता ना ये,
then 50% depreciation. But this is 1/11/2022 को put to use हुआ है, अगले it is previous year 2022-23 में put to use हुआ है. So in 2022-23 you will get full depreciation and in current year you will get zero depreciation. ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर हुआ? सर रिपीट कीजिएगा सर. ठीक है, ओके. तो ये मैंने ये डेट देख लिया था इसलिए आपको मैं वो बोल रहा था. ओके, तो इसमें बेसिकली देखिए मैं आपको फिर से एक बार मैं समझाता हूं अगर कुछ आपको डाउट रह गया तो. ठीक है, देयर आर ओनली 3 थिंग्स. ओके, ये है आपका करंट प्रीवियस ईयर. जिस ध्यान से आपको देखना है, बहुत सिंपल चीज है, क्लियर है. ठीक है, ये आपका करंट प्रीवियस ईयर है. क्या है करंट प्रीवियस? 2021-22. ठीक है, ये है आपका फ्यूचर प्रीवियस ईयर 2022-23. ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर प्रीवियस ईयर और ये हो गया आपका पिछला वाला प्रीवियस ईयर. ठीक है, ये 3 ही चीज आ सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट केस है आपने परचेस किए हो यहां इस डेट में. ठीक है, पुट टू यूज एनीवेयर इन दिस डेट. एनीवेयर मतलब 1 April 2021 to 31 March 2022. ओके, पुट टू यूज एनी डेट हियर. ओके, किसी भी डेट पे पुट टू यूज करेंगे आपको 100% डिप्रिसिएशन मिलेगा. ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? इतना आगे पीछे का मत पूछिए. दिस पॉइंट इज क्लियर. ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो मैं आई विल रिपीट इट. ठीक है, ओके. तो सेम चीज पे आप क्वेश्चन मत पूछिए मेरे को. ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग. नाउ आफ्टर दिस, ठीक है, ये हो गया, ये पहली बात. अब दूसरे ये मैंने पहली बात बताई, परचेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर के पहले वाला प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज यहाँ है किसी भी डेट में, तो इट इज 100% डिप्रिसिएशन. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. ओके, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक. अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं आपको. ठीक है, परचेज यहां नहीं है. ठीक है, पहली बात हो गया, परचेज ही यहां है. परचेज यहां है अगर, ठीक है, और पुट टू यूज भी यहां है इन सम अदर डेट. तो जो पुट टू यूज का जो डेट होगा ना, यूज दिस डेट फॉर डिप्रिसिएशन. सो अगर इफ परचेज इज से ऑन 1 April 2021, ठीक है, और पुट टू यूज से इज ऑन 30 December 2021. ठीक है, सो आप ये पुट टू यूज का जो डेट है ये आपका, ओके, कंसिडर दिस एज योर डेट ऑफ परचेज एंड पुट टू यूज. सो इस केस में क्या रहेगा, अगर 31 December है तो यू विल गेट 50% डिप्रिसिएशन. ओके, बट इफ इट इज 3 October के अंदर में अगर उसने पुट टू यूज कर दिया है, इफ यू हैज पुट इट टू यूज अंडर 3 October, ठीक है, 3 October या उससे पहले अगर पुट टू यूज कर दिया है सेम ईयर में, इफ यू हैज पुट टू यूज विद इन 3 October, देन इट इज 100% डिप्रिसिएशन. ये दो पॉइंट में एनी डाउट? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, डू यू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? सेम चीज को रिफ्रेश मत कीजिए प्लीज. ओके, जस्ट आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ओके, इफ यू हैव एनीथिंग जेन्युइन, एनी अदर क्वेश्चन, यू कैन डेफिनेटली आस्क. ठीक है, सो ये बात समझ में है? कितना समझ में है? यस, नो, मे बी? यस सर. ओके, सो अब लास्ट पॉइंट इसमें मैं बता रहा हूं आपको. ठीक है, और इसका ये है कि अगर आपने, इफ यू हैव परचेज्ड इन द करंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, बट आपने पुट टू यूज यहां कर दिया, ठीक है, तो परचेज जहां कर रहे हैं आप, यहां पे आपको 0 डिप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि आपने पुट टू यूज नहीं किए. वेर यू हैव परचेज्ड यू विल गेट 0 डिप्रिसिएशन. ठीक है, और वेर यू हैव, जहां आपने जिस ईयर में पुट टू यूज कर रहे हैं, यहाँ आपको 100% डिप्रिसिएशन मिलेगा. तो आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर नाउ. मैंने आपको ऑल केसेस तीनों प्रीवियस ईयर का मैंने समझा दिया है. ठीक है, डिप्रिसिएशन का कैसा होता है करके. और क्या अगर आपने प्रीवियस ईयर के पहले खरीदे हो या करंट में खरीदे हो,
ठीक है, और करंट में खरीद के पुट टू यूज किया फ्यूचर प्रीवियस ईयर. सो इज दिस क्लियर नाउ? ओके, जस्ट आंसर इन योर text box, answer in your message box whether this is clear or not. I will not move ahead if you don't answer. किस किस पे जवाब नहीं दिया है अभी तक? रोहित, अजीत, okay, fine. ठीक है, now this, I hope this is clear now. So this is जो केसेस मैंने बताया, you will have only these cases in depreciation. ठीक है, कोई अलग केस नहीं आएगा. So don't confuse. ठीक है, इसी यही केसेस हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता. नेक्स्ट वाला आप देखिए, see this. Are purchased for 30,000 on 1/7/2020. ठीक है, so 1/7/2020 और ये ना. ओके, who will tell me क्या हो रहा है, इसका क्या होगा? हिमांशु. सर 100%. Very good. Next case is furniture S purchased. अच्छा, ये एक this case is furniture. हमको मालूम था कि there are two furnitures, right? X and Y. दो furnitures थे हमारे साथ. Okay. Now we have purchased furniture X on 1/7/2021. ठीक है, 1 जुलाई 2021 को we have purchased new asset. Okay, and it was put to use on 11/11. ठीक है, so 11/11 means new आपको कितना depreciation मिलेगा? 50%. Okay, you'll get 50% of the depreciation whatever is applicable. और फिर क्या हुआ? X and Y have been sold for 16,000, totally for 16,000. ठीक है, so मैं आपको एक केस बताता हूँ. चलिए नीचे चलते हैं. तो purchased for basically purchased for 10,000, depreciation तो 50% मिलेगा आपको, that is fine. Okay, and these two were sold. अब ये याद रखने की बात है कि इस ब्लॉक में कौन सा एसेट रह गया है? only one asset in this block, correct? अभी सिर्फ S ही रह गया, right? We had X, Y and S. ठीक है, X और Y बेच दिए, so X S बच गया. Okay, so now this case L आप देखिए बहुत peculiar है. That's why I'm telling you. Case L. ठीक है, this is your case L. Okay, यहाँ पे this is the opening WDV. Okay, this is the opening WDV and this purchase 10,000 का किया. Okay, we add these two, है ना? As per the format, इसको add करेंगे 90 हो जाएगा. Both were sold for 10 and 6,000, correct? So इसमें sale value, sale is for 16,000. ठीक है, sale होगा 16,000. अभी 90 minus 16 आप करेंगे ना 74,000. ठीक है, so your written down value of the block is 74,000. okay, एसेट कौन सा बचा? नया वाला. नया वाला का इंडिपेंडेंटली वैल्यू आप देखोगे तो सिर्फ 10,000 है. ठीक है, एक्चुअली इन अभी बिकॉज यू हैव इन द ब्लॉक यू हैव रिटन डाउन वैल्यू 74,000.
ठीक है, लेकिन ऐसा हो गया केस कि योर ओनली वन एसेट is there in this group and that asset you have bought for 10,000 in यहाँ 74,000। अब आप क्या करोगे कि 74,000, अब पूरा 74,000 is represented by the new asset। समझ में आ रही है ना बात? Understanding that the entire 74,000 is represented now by the new asset, correct? So what will you do? Will you give 50% depreciation on this 74,000 or 100%? What will you do? क्या करना चाहिए? सर न्यू एसेट की परचेज डेट क्या थी जो एसेट? हाँ, तो अभी जैसे ये न्यू जो किया है उसने, दिस वाज द न्यू वन, राइट? न्यू वन है, दिस इज न्यू वन, बट देन इसके बाद क्या हुआ? ये सोल्ड बोथ द ओल्ड वंस। सो नाउ योर WDV जो रह गया है, नाउ इफ आई शो यू बाय ब्लू कलर, दिस इज द WDV, ठीक है, बट इट इज represented only by one asset which is this new asset। ओके, समझ में आया? सर ऐसा केस हमने कल भी देखा था, एक मैं आपसे बता भी रहा था, सेम केस था एक। Sir, I am not getting the point. I'm not getting the point over here. Okay, so here see what I'm saying is you have 3 assets, right? You have total, we have how many assets? 3 assets. Okay, so when you started with 80,000 you had 2 assets. Okay, then you purchased this, so it became 3 assets. Okay, and just now we have seen that this should get 50% depreciation, correct? Okay, yes, till here you are fine. So now if I add both I'll get 90,000, but now out of 3, 2 assets have been sold here. Okay, yes sir. 2 assets have been sold, so आपका बचा रिटर्न ऑन वैल्यू कितना है? 74,000। ठीक है, 74,000 is your remaining written down value. What I am trying to tell you is ये 74,000 अभी कौन कौन से एसेट से हम लिखते हैं ना अंडर द रिटन डाउन वैल्यू, तो कौन सा एसेट लिखेंगे आप अगेंस्ट दिस 74,000 इन दिस ब्लॉक? दिस न्यू वन ओनली विल बी देयर, राइट? Yes sir. करेक्ट। सो अब सर टेक, हाँ अदिति, सर 10,000 पे 5% का कैलकुलेट होगा और 18,000 में 16,000 माइनस करेंगे तो 64,000 होगा। 64,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 6,400 होगा। 6,400 और प्लस 500 6,900 हो जाएगा डेप्रिसिएशन। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं यही बात ये यहाँ जो मैं समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि नाउ ये 74,000 पूरा मेरा एक ही एसेट है। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है इस केस में मैं समझा रहा हूँ, एक एसेट का के लिए आप 1% ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करते हो, राइट? इफ इट्स वन एसेट either it will be 5% or it will be 20%, whatever, only 1%। यार मैं केस ये बता रहा हूँ कि यार ये 74,000 है, ये एक्चुअली नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन एसेट, ठीक है, लेकिन इसके 2 डेप्रिसिएशन रेट लगेंगे। ठीक है, इसके 2 डेप्रिसिएशन रेट लगेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, सो वन विल बी ठीक है, तो एक मिनट, तो यहाँ पे आपके 2 रेट लगेंगे। सबसे हम कैसे करते हैं, जैसे हम पहले करते थे सेम वही करेंगे। ओके, न्यू एसेट वी सेपरेट आउट। ठीक है, न्यू इज हाउ मच? 10,000, बाकी सारा ओल्ड है मानते हैं। ठीक है, तो जैसे हिमांशु आपने जो बोला वो तो ठीक है, जो हमने प्रीवियस देखे, प्रीवियस में ये नहीं आ रहा था कि अभी सेम एक ही एसेट रह गया और एक ही एसेट को हम बांट रहे हैं ओल्ड और न्यू में। ओके, यहाँ पे ये 74,000 अभी एक ही एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बांट रहे हैं 2 में। One is 10,000, one is 64,000। In 64,000 will be considered as old, और आपको full 10% depreciation will be available on this, and this 10,000 will be considered new, and you will get 5,000 depreciation, 5%।
अब इसका आप करके देखो, यू विल गेट 6,900। पहले वाला का आपका आ जाता है 500, फर्स्ट वन इज 500, सेकेंड वन यू गेट इज 6,400। ठीक है, समझ गया सबको? व्हाई आई वाज क्यों मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ये केस अलग है करके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। Now understood everyone what I was trying to highlight, that this is one asset, but in one asset WDV we are showing 2 depreciation percentage. Same asset का ही एक पार्ट पुराना है हम बोल रहे हैं, एक नया है। Okay, that was what I was trying to explain. So understood everyone? इस point पे मैं जो भी बोल रहा था whatever. Yes sir. Oh sir, I have doubt. हाँ, yes हिमांशु। सर न्यू एसेट की वैल्यू 10,000 थी, उसमें से 16,000 का जो हमने सोल्ड आउट किया वो दोनों ओल्ड एसेट्स थी, राइट? करेक्ट, 16,000 दोनों ओल्ड एसेट, करेक्ट। ओल्ड एसेट दोनों सोल्ड आउट हो गई, तो 74 में ओनली न्यू एसेट इंक्लूड है, व्हिच इज एस फर्नीचर। करेक्ट, एज पर यानी जो फिजिकली एसेट अभी बचा है आपके पास वो सिर्फ न्यू है, एक ही न्यू एसेट बचा है, और वैल्यू जो आपके पास है 10,000 नहीं, आपके पास 74,000 बचा है। सर वो तो समझ आ गया, बट जो हमने कल केस देखा था लास्ट में वो भी सेम था, बट उसमें ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा कॉन्ट्रैक्टिव लग रहा है। वो आपने आप देखिए वो केस दैट विल बी लिटिल डिफरेंट। सारे केसेस आर डिफरेंट, और जैसे जैसे हम ट्रीट करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये ओनली केस ऑफ दिस काइंड है, इसीलिए मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। इस केस में ये हुआ है तो आप उसको जाके देखेंगे फिर से, ओके। एंड इफ नॉट देन यू विल हैव टू हाईलाइट मी दैट केस। बताओ आपको कि इस प्रॉब्लम में इस केस में हमने ऐसा नहीं किया, ओके। तो मैं आपको आई एम टेलिंग यू विथ ऑल कॉन्फिडेंस दैट दिस केस इज डिफरेंट। इस केस में ये हो रहा है, you have only one asset which is remaining, which is new, and in the same asset आप 2% दे रहे हो। That was not the case कल के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे। ठीक, क्या होगा, और टाइम वेस्ट होगा बस। ये सब कुछ चीजें ग्राउंड वर्क आप लोगों को करना है घर में, ठीक है, नहीं तो क्लास का टाइम हमारा वेस्ट होता है। ये सब आपको घर में जाके देखना है ये सेम केस है कि नहीं है। अब मैं अगर फिर से बताऊंगा ये बात हो जाएगी। कहाँ पे सेल्स है, ये देखिए ये केस की बात आप कर रहे हैं। केस 5 में इसमें फर्क क्या है, ये देखिए, इट वाज परचेज्ड ऑन 1/7, तो आपको 2% का डिफरेंस का केस कैसे पता चलेगा इसमें, जो मैंने अभी बताया। अभी इसमें क्या होगा कि ये भी पुराना ही एसेट हो गया ना, 1/7 यानी आपको पूरा एक ही परसेंटेज लग गया। तो जो केस मैंने अभी बताया आपको, उसमें सेम एसेट का एक पार्ट में अलग डिप्रिसिएशन लग रहा है, दूसरे में अलग। ओके, सॉरी नंदिनी एंड अदर इंग्लिश स्टूडेंट्स। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू, सो दिस वाज द दिस यू आर रेफरिंग टू। ये सब केसेस तो मैं चाहूंगा हिमांशु और आप सब लोग ये सब घर में आप इसमें ग्राउंड वर्क करें, ठीक है। इतना टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है इसमें, और इसमें क्या फर्क है वो आपको फर्स्ट यू शुड डू योर ग्राउंड वर्क, देन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू आस्क मी, ओके। मे बी यू वुड हैव सीन दिस एट होम, आपको भी समझ में आ जाता है इसमें और उसमें क्या फर्क है। चलिए, ये और एक दिस इज अनदर प्रॉब्लम, ओके। इसमें सो दिस हैज गॉट से इसमें लिटिल बिट ऑफ कनेक्शन इज देयर विद योर एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। सो वी हैव नॉट येट डन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम हम करेंगे या तो मुझे पीजीपी के बीच में फुर्सत मिल गया तो आई विल डू इट, विल जस्ट नीड 2 or 3 lectures to complete agricultural income. If not, then definitely capital gains start करने से पहले we will start agricultural income. It's a short topic, we will complete it. ठीक है। So normally I do it before PGBP, but just to bring you all to pace.
I've done this. ठीक है, चलो तो इसमें only thing here is Mr. X is a grower and manufacturer of tea. Okay, just remember that in tea business, okay, in tea business, 60% of income is exempt. It is said to be agricultural income. Okay, and we have earlier studied that profits of assessable business, okay, cannot be compared with profits with say expenses of non-assessable business. Okay, so assessable business will be separate, non-assessable business will be separate. ठीक है, उसका चीज कि उसका उसमें आपको you are not paying any tax, so उसके कोई भी expenses you cannot bring to assessable business. Okay, this is the point we had seen earlier. The grower and manufacturer of tea purchased machinery at 15% depreciation. Depreciation is 15% on 2020 for 10 lakh. He has computed depreciation and they are asking our comment. Okay, so this is only a commenting question. So this is in this. This is nil. Okay, opening WDV on 1/4/2020 because he bought it on 10/4/2020. Okay, so that means on first there was no asset. Okay, because he bought on 10/4, on first there was no asset. So on 1/4 is nil. Then assets purchased is 10 lakh is what he has purchased. Okay, so and then depreciation of previous year 2021. Okay, so यहाँ पे what he has done, as I said, 40% is accessible, 60% is not accessible. So he just did 10 lakh into 15% into 40%. Okay, so he got this depreciation. So this minus this, ये हो गया. Then again next year का depreciation, next year's depreciation is he has taken same thing, 15% into 40%. Okay, ये मिला, this minus this, he got this. Okay, so this is how he got his WDV. ठीक है, अब now they have all told us कि इसके आगे then you have additional information is compute his business income for AY 2022-23 and assume that income before depreciation and without reducing element of agricultural income is 80,000. ठीक है, here this 8 lakhs, sorry, 8 lakhs is income before depreciation and without reducing element of agricultural income. Okay, is 8 lakhs. ठीक है, on तो ये हमको दिया गया है. Okay, so now is this the question is whether this is the right way of computing or not. ठीक है, इस पे हमको comment करना है. This is only a commenting question. Okay, just see it from that angle. तो इसमें बस ये देखना है कि see here we have got one section which is provided how to compute this. ठीक है, your explanation 7, this is already told you how to provide it. So this is the correct way of doing it. ठीक है, जैसे उसने किया वैसा नहीं. This is how it is to be done as per the procedure. Okay, 1/4 में nil, same 10 lakhs purchase, till here there is no change. Okay, now for first year you have to provide depreciation for the whole thing. Okay, you have to provide depreciation for the whole thing, not take 40%. So whole depreciation will be 1,50,000 and then this minus this will be 8,50,000. Then again provide depreciation second time. इसमें भी whole thing रहेगा. Okay, and your depreciation will come to 1,27,500. Or WDV will be this. Now इसमें आपको दिया गया, they had given you 8 lakhs, correct? Okay, so this is how it should actually be computed. इसके बाद then take income before depreciation without reducing element of agricultural income. Okay, so we'll do one thing. You can, if you possible, please join back immediately. Okay, join back immediately now. Same link. We'll continue with this one.